की ब्रह्मलीन श्री सदगुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की आज के आनंद की जय। परम पूज्य श्री सदगुरुदेवना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराजना चरणों में प्रणाम। स्वामी श्री कैलासपुरी जी ना चरणों में प्रणाम। आप सौने जय श्री गुरुदेव। खूबज आनंद व्यक्त करिए छे। आजे हर्षोल्लास थी आज अपने परम पूज्य गुरुदेव नो 74मो जन्मोत्सव આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ। खूबज सौभाग्यशाળી છીએ परम पूज्य गुरुदेवना सानिध्यમાં એમનો જન્મદિવસ દર વર્ષે આપણે ઉજવવાનો આપણને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। અલગ અલગ રીતે આપણે જન્મોત્સવ ઉજવતા આવ્યા છીએ। છેલ્લા ગયા વર્ષે આપણે એક ચેર આપી હતી જે આંદોલનકારી હતી। એમાં ગુરુજી બેસીને આરામથી બેસી શકે એ રીતની ચેર આપી। એમના આગલા વર્ષે જે દિવાન મેજ કહેવામાં આવે એવું એક મેજ આપવામાં આવેલું। જે પણ ગુરુજી આપણી જેટલી પણ વસ્તુ આપણે અર્પણ કરીએ છીએ ગુરુજીને આપણા હેસિયત મુજબ કે આપણી સ્થિતિ મુજબ, પણ ગુરુજી એ સ્વીકાર કરે છે અને ખૂબ જ આનંદથી એનો ઉપયોગ કરે છે। એ ખૂબ જ આનંદની વાત છે। એમના બંગલા ઉપર પણ જોઈએ તો જે હિંચકો આપણે આપ્યો છે એટલા સરસ ગુરુજી એમના પર બિરાજમાન થઈને જે આનંદ લે છે કે હૈયો આપણો એકદમ હર્ષોલ્લાસથી ભરાઈ જાય છે। તો એવું આપણને જે કંઈક આ ભેટ ભક્તો તરફથી આપણે આપી છે ગુરુજીને। આ સત્સંગ હોલમાં જે કમી હતી જે વ્યાસપીઠની એ આ વર્ષે આપણે પૂર્ણ કરી શક્યા કેટલા વર્ષો પછી। જે ગુરુજીએ સહર સ્વીકારી જ છે એમના ઉપર બિરાજમાન થયા છે। આ જે વ્યાસપીઠમાં તમામ ભક્તોનો એમાં ફાળો છે। દરેક જણે એમાં સહભાગી થયા જ છે। સર્વે ભક્તોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આજે ગુરુજી 74મા વર્ષનો જન્મોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે। ગુરુજીનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ જ સારું રહે, ખૂબ જ આનંદમાં રહે ગુરુજી। ગુરુજી આનંદમાં તો આપણે આનંદમાં, ગુરુજી ખુશ તો આપણે ખુશ। એવી રીતે ભગવાન ભાવાશ્વરના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ ગુરુજીનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે, ખૂબ જ આનંદમાં રહે, આપણી વચ્ચે સદા બિરાજમાન રહે, આપણને જ્ઞાનનો પ્રવાહ જ્ઞાનના ગંગામાં વહેવતા જ રહે, આપણને જ્ઞાનની ગંગા સંભળાવતા જ રહે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના સર્વવતી હું ગુરુજીના ચરણોમાં ભગવાન ભાવાશ્વરના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ। જુગ જુગ જીવો ગુરુજી, ચિરંજીવ એવા આપણે પ્રાર્થના કરીએ। હવે આગલો કાર્યક્રમ કરીએ કે આ જે આપણે ભેટ આપી છે સર્વ ભક્તો મળીને, એમાં સર્વ ભક્ત વતી હું થોડા ભક્તોના નામ લઈશ અને આપણે એક હારથી પૂજ્ય ગુરુદેવનું આપણે એમનું સન્માન કરીશું, સ્વાગત કરીશું। પ્રથમ વિનંતી કરીશ શ્રી શંકરભાઈ દેસાઈ, શ્રી અખંડ વિદ્યારણ્ય શિષ્ય ભક્ત મંડળના નવા પ્રમુખ શ્રી ભગુભાઈ બરુમાળ, શ્રી કાંતિભાઈ પાડવી, શ્રી દીપકભાઈ નવેરા, શ્રી અમરતભાઈ નવેરા, શ્રી ધનસુખભાઈ ગોઈમા, श्री सनाभाई पी पटेल बिलपुडी, श्री शांतिभाई पी गरासिया धरमपुर, श्री भरतभाई एम पटेल पाटी, श्री ईश्वरभाई खानपुर, श्री नारायण भाई बिलपुडी, श्री भगुभाई डूंगरी। आ मुख्य मुख्य भक्तों नाम लीधा है। आपना सर्ववती ए लोग अहीं पूज्य गुरुदेवનું સન્માન કરશે, મુખ્ય હારથી એમનું સન્માન કરશે। હરિ બોલ, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીએ ગુરુજીને. सुरेश मेरे को खड़ा कर रहा था वहां से. અરે વાહ. માટે અહીં ઓફર કરી છે. જેઓ અહીં સ્વાગત કરવા માંગે છે. ગોકુળભાઈ શાંતિભાઈ દિવ્ય અગ્રવાલજી અને એમની જોડે શ્રી રામ અવતાર અગ્રવાલજી એવો પણ આવશે અહીં ગુરુજીના ચરણોમાં પુષ્પહાર અર્પણ કરશે. શ્રી ધનસુખભાઈ એમ પટેલ સાથે સરલાબેન એવો પણ પુષ્પ અર્પણ કરશે. શ્રી બિપિનભાઈ કાકડવેરી, રમતુભાઈ ખૂબ જ શ્રી સદગુરુધામમાં અહીં મદદરૂપ થનાર એવા રમતુભાઈ બરુમાળ એવો પણ પુષ્પહાર અર્પણ કરશે. કિન્નરીબેન વાર્ડ, ઈશ્વરભાઈ ખાનપુર, एक मिनट पंडित श्री नंद किशोर शास्त्री जी એવું પણ પૂજ્ય ગુરુદેવને પુષ્પાર અર્પણ કરશે. પ્રવીણભાઈ પાડવી સાહેબ, એક હાર લાવે સ્વામીજીને કરાવે છે. હા, દીપકભાઈ નવેરા, તું પહેરા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત સતત આપણી સાથે રહે છે એવા પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી નિત્યાનંદ સ્વામીજીનું પુષ્પહારથી સ્વાગત કરીએ આપણે. ભરતભાઈ, સ્વામી કૈલાસપુરીજી મહારાજનું ધનસુખભાઈને વિનંતી કરીશ. નારાયણભાઈ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં પુષ્પ અર્પણ કરશે. જી મોહનભાઈ ટોલડુંગરી, નરસિંહભાઈ, લે મારને આપણા સદગુરુધામના માજી પ્રમુખ શ્રી અમૃતભાઈ, પગુભાઈ બરુમાળ,
ભરતભાઈ આપણા ઉપ પ્રચાર મંત્રી. दृष्टा पुरस्तादगनेराधिपतिय आयुर्नेदाः उत्तरावति दक्षिणत इन्द्रस्याधिपतिये प्रजां मेधाः सुगदा पश्चाद्देवस्य सवितुराधिपतिये चक्षुर्मेधा आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपतिये रायसपोखं मेधाः वितरेति उपरिष्टा बृहस्पति राधिपतिय ओजो मेधा विश्वाभ्यो मानाष्ट्रा दशपाहि मनो रसवासी. सद्गुरुदेव भगवान की जय. भाव भावेश्वर महादेव की जय. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. દેવની ભાવેશ્વર મહાદેવની જય. પીતાંબરા માત કી જય. શંકર ભગવાન કી જય. અંબે માતની જય. આદ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય ભગવાન કી જય. સનાતન ધર્મની. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. પરમપિતા પરમાત્માની અસીમ કૃપા બ્રહ્મલિંગ ગુરુના આશીર્વાદથી આજે ખૂબ આનંદની વાત છે. પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય શ્રીમદ પ્રમુખ સપ્રગાચાર્ય ક્ષોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ વેદાંતાચાર્ય આપણા ગુરુ જેનો 74 વર્ષમાં પ્રવેશ થઈ રહ્યો ત્યારે આનંદની વાત છે. અને મને એટલા માટે આનંદ થાય કે પૂજ્ય ગુરુજીએ મને યાદ કરીને બોલાવ્યો એ મારા માટે અહોભાગ્ય વાત છે. બે વાર ફોન આવ્યા. ગઈકાલે ત્યાં ભંડોરો હતો, નવચંડી હતી, છતાં ગુરુજીએ એમ કીધું કે 11 કામ સુધી પહોંચી જશે. હું 11:15 પહોંચી ગયો. એ એમની કૃપાનું ફળ છે. આનંદ એટલા માટે 74 વર્ષ 73 74 એટલે 7 ને 4 11 11નો આંકડો થયો ને, એટલે શુદ્ધ બ્રહ્મ પરમાત્મા જ છે. કારણ કે શિવજી હનુમાનજી અત્યારે ગયા ને સુંદરકાંડમાં, એ હનુમાનજી પણ 11 મૂર્ધર તરીકે રામની સેવા કરવા માટે આવેલા. મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે વધારે નહીં બોલતા, પણ આપણા ગુરુજી સતમ જીવે, 100 વર્ષ પૂરા કરે, શતાબ્દી ઉજાવીએ અને એમનું સ્વાસ્થ્ય સુંદર રહે, આપણને સુંદર જ્ઞાન આપતા રહે. અને એવી જ શક્તિ પરમાત્માને પ્રાર્થના છે. વધારે નહીં બોલતા, આ બધાને ભગવાન સુખી સમૃદ્ધ કરે, સ્વાસ્થ્ય સુંદર રાખે, એવી જ પ્રાર્થના સાથે. અને આ કાર્યક્રમમાં આનંદની વાત છે, ક્ષમા કરજો સ્વામીજી, આપણા જ વિસ્તારમાં મોગદમાં પરમ પૂજ્ય સ્વામી મહામલ્ય સ્વામી નિત્યાનંદજી મહારાજ પણ પધાર્યા છે. એમનું નામ લે ભૂલી ગયો, છતાં કારણ કે બ્રહ્મ એક જ છે, રૂપ જુદા છે. એવા સદગુરુ રૂપના આપણા ચરણમાં હંમેશના માટે પણ એક વાત યાદ કહી દઉં કે ગુરુજીના આશીર્વાદ લેવા હોય, આજે અવેરનેસ માટે જોઈએ તો ગુરુના ચરણમાં અનન્ય વિશ્વાસ પ્રેમ રાખજો, ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરજો. એવી જ પ્રાર્થના સાથે સર્વે તસ્મિન સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયા
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय सम्माननीय श्री महाराज जी चरणों में प्रणाम। उपस्थित संत वृंद श्री नित्यानंद जी महाराज, મને નામ ખ્યાલ નથી, कैलासानंद जी महाराज, બધા સંતોના ચરણોમાં પ્રણામ। आज एक ऐसा दिन है कि एक परिव्राजक उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भावेश्वर भगवान की छत्र छाया, और मेरा ये मानना है एक बहुत खुशी की बात है कि हमेशा उनके जन्मदिन में लगभग 20 सालों से मैं आ रहा हूं। और ऐसा नहीं है, महाराज जी संगीत, शब्द और स्वर के इन तीनों के संगम के महारथी कहें या समुद्र कहें, वो सब चीज जानते हैं, फिर भी मुझे जैसे एक छोटे व्यक्ति को यहाँ याद करते हैं और आदेश करते हैं सुंदरकांड करने के लिए। मेरा अहोभाग्य है। हम आप इतना ध्यान रखें कि हम धागे हैं, दोरा होता है ना, दोरा, हम धागे हैं। धागा कितना भी मजबूत हो पर सुई के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और सुई कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सुई के अंदर जो छेद होता है ना, वो नहीं होता तो सुई किसी काम की नहीं है। इसीलिए महाकवि कालिदास जी ने अपने रघुवंश महाकाव्य में बहुत सुंदर लिखा है, अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरभिः मणोवज्र समुत्कीर्णे सूत्र से वास्ते में गति। मेरी गति, मैं रघुवंश लिखने को बैठा हूं, मेरी गति तो सूत्र के समान है। और सूत्र भी क्या करेगा, सुई भी क्या करेगी, जब मणोवज्र समुत्कीर्णे, मणिवेदक सूची विशेष विद्या, अर्थात जो यंत्र है जो सुई में छेद करता है वो यंत्र, ऐसे महापुरुष ही उस यंत्र का काम करते हैं। आप हम धागा बन करके उनके पीछे पीछे उनका अनुकरण मत करो, उनका अनुसरण करो। महाजनों ये न गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से निकल गए हैं हमें भी उसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। अस्तु। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भावेश्वर महादेव चरणों में। આપણે પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી નિત્યાનંદજી મહારાજને ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ, એવું પણ આપણને આશીર્વાદ આપે। अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। आज के पद महाराज श्री के चरणों में हृदय से प्रणाम हम सभी की ओर से करता हुआ, वास्तव में यहाँ बैठे बैठे मन शांत स्थिर हृदय आनंद से भरा हुआ शास्त्री जी को श्रवण करते हुए महाराज जी के सानिध्य में, और जैसे दीपक भाई ने कहा कि हम सब जन्मदिन मनाते हैं। हम मनाते हैं क्योंकि दूसरे लोग मनाते हैं, हमको पता नहीं क्यों मनाना है, सब मना रहे तो मैं भी मनाऊं। लेकिन जब हम किसी महापुरुष का मनाते हैं तो वास्तव में मनाने जैसा है। आप सभी जानते ही हैं, सभी को पता ही है कि हाँ आप सब कितने सारे लोग जुड़े हैं इस धाम से, इस आश्रम से, इस मंदिर से, सदगुरुदेव महाराज जी से, महाराज जी से, और कितने जितने वर्ष महाराज जी के हुए शायद उतने वर्ष सदगुरुदेव ने इस क्षेत्र में कार्य किया है। और उसका जो प्रभाव है, मैं मानता हूं जब हम आते हैं तो हम अनुभव करते हैं। कितने सारी बेटियां यहाँ से पढ़कर उनका जीवन का उद्धार हो गया। आजकल लोग एक बच्चे को पढ़ाने को डरते हैं। मैं कभी अच्छे घर वाले को कहता हूँ कि 2-3 बनाओ तो बोले नहीं एक ही बस है। एक पढ़ाने को ही उनको लगता है कि बहुत हो गया। यहाँ तो कितने हजार पढ़कर, और शाम को जब आप आते हो यहाँ वो शिव महिमन करते हैं मंदिर में, तो वो श्रवण करने का एक आनंद अलग होता है। और बहुत कुछ, कितनी कथाएं अभी आपने ये गोपी गीत के 2 मेरे प्रिय, जो मुझे लगता है कि जब श्रवण करता हो इंदिरा चंद में तो मन वहाँ चले जाता है। जब वो घटना घटी होगी, क्या हुआ होगा, हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवे तरो जनाः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि हम बस अपने जीवन में यही करें जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिसको हम बड़ा मानते हैं, जिसको हम पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय मानते हैं। बस वो जो जैसे शास्त्री जी ने कहा ना कि हम अनुसरण करें, हम उनका नकल ना करें। हम ये ना करें कि महाराज जी एम करे છે એટલે આપણે પણ આમ જ કરીએ। कई बार ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने जो अभी गाया ना उपनिषद का श्लोक उत्तिष्ठत जागृत, लेकिन उसमें कहा कि क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। कठिन है ये सब जो बताते हैं ना, समझाते हैं कि वेला उठो, नहा लो, पूजा करो, जप करो, पाठ करो, ध्यान करो। हमारे यहाँ अभी विद्यालय में नए एडमिशन हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से माता पिता आ रहे हैं। आते आते आनंद गाड़ी में कह रहा था कि कई लोग बोलते इतना सब कुछ करते हो आप लोग, मतलब सुबह पाठ, मध्याह्न में पाठ, शाम को पाठ, शाम को संध्या, ये सब वास्तव में करना चाहिए हमको। और ये सब एक पीढ़ी हमारे यहाँ जो हमारे गुरुजनों ने हमको दिया है, हमारा सौभाग्य, हम इसका अनुसरण कर रहे हैं। सुबह उठना, जल्दी नहा लेना, पूजा पाठ करना, भगवान का स्मरण चिंतन करना। आप सभी को याद होगा गांव में पहले अपने जो बड़े होते थे उठकर घर में वो दीपक सबसे पहले जलाते थे, भगवान को प्रणाम करते थे। वो जब दीपक जलता था दादी माँ का या जो भी अपने बड़े होते थे घर में, उसके बाद घर वाले उठते 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 नहा धो के तैयार होते थे, सभी मंदिर में भगवान का दर्शन करके फिर घर का सब प्रक्रियाएं, सारी प्रक्रियाएं चलती थी।
अभी हम कब उठते हैं, दीपक जलता है नहीं जलता है, मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं नहीं करते हैं। ये सब लोगों के साथ कितने सारे गुण जुड़े, केवल दीपक की नहीं बात है प्रातःकाल की, उसके साथ जुड़े हुए कितनी बातें दुनिया भर इसको याद करती है। तो आज जब हम महाराज जी का अवतरण दिवस, जन्म जयंती ये सब मना रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा कि आज आए, उत्सव हुआ, भंडारा प्रसाद खा लिया, घर गए, इतने से काम नहीं होगा। अपने को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कितना पुरुषार्थ और मेहनत से पहले सदगुरुदेव ने जो कार्य किया, अब जो महाराज जी चला रहे हैं और हम उनके साथ जुड़े हैं, तो इनमें से मैं अपने जीवन में क्या क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा करते 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 बूंद 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 पानी जमा होते 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 बहुत पानी हो जाता है। लेकिन अगर बूंद बूंद में हम नहीं जमा करें ना, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है कि इस वर्ष भारत में रहना हुआ। इस समय महाराज जी एक दिन मिलने आए थे, तो कह करके गए थे 26 को 11 बजे आना। तो मुझे याद था कि मई महीने में आना है, जन्मदिन है, और बड़ा महीना सुंदर रहा। शुरुआत हुआ आद्य शंकराचार्य जी की जयंती से 2 मई को हमने सब बड़े खुशी से, आनंद से, धूमधाम से मनाया, क्योंकि उनके कारण तो हम हैं। हम सब जितने भी दशनाम, सन्यासी, अद्वैत, वेदांत, प्रस्थान त्रयी वाले हैं, सब उनके कारण हम सब आज हैं। उन्होंने जो किया उस समय किया, उसके कारण हम सब आज गर्व से सनातनी है। महाराज जी ने भी कुछ महीने का 1 महीने पूर्व ही सनातन संकल्प किया कि हम एक दृढ़ संकल्प लेके ये जो सनातन की धारा है, इस धारा को अपने को चला कर रखना है, चलाते रहना, और हम सबको मिलकर ये कार्य करना है। अगर हम सब जुड़े रहेंगे ना, तो ये धारा अच्छा और तटस्थ होकर रहेगा। और अपने को यही प्रयास करना है कि यही धारा हम अपने नवयुवकों को दें, उनको भी हम लाते रहे, जैसे हमारे लोगों ने हमें लाया, हम यहाँ जुड़े, वैसे हम भी अपने, चाहे कुछ भी कहे कुछ भी करे, अपने को लाना है, प्रणाम करवाना है, आशीर्वाद दिलवाना है। तो कभी न कभी वो दुर्लभम तयमे वैतत देवा अनुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। महाराज जी के जीवन में हम देखते हैं गुरु की कृपा भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। और हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी ये जो तीनों दुर्लभ है और भगवान की कृपा की जो हेतु है, हमारे में भी वो मनुष्यत्व जाग जाए। और लोग उनसे मैं हमेशा कहता हूँ, मनुष्यत्व यानी मनुष्य जन्म ही नहीं, परंतु मनुष्य जन्म में मनुष्यत्व। और महापुरुष की कृपा और आशीर्वाद से वो मुमुक्षुत्व, एक जिज्ञासा जागृत रहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब पुनः पुनः जिस भी कारण से आते रहे। अभी 1 महीने के बाद 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा होगी, उस समय आएंगे। उसके बीच में कभी मैं लोगों से कहता हूँ ना, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, समझ नहीं आती, तो क्या करें, चलो भाव भावेश्वर का दर्शन करते। महाराज जी होंगे तो उनके पास 2-5 मिनट बैठ लेते, वो कैंडी मिल जाएगा, कभी दक्षिणा भी देते हैं महाराज जी अपने को। સાચું ને? આપણને પણ મળ્યું છે એટલે હું કહું છું। कभी कभी भक्त लोग आते हो शर्माते भी है कि महात्मा से अपने को लेने का कि महात्मा को अपने को देने का, लेकिन वो तो आशीर्वाद है, वो तो प्रसाद है, उसको हाचवी ने राखवानो। इस क्षेत्र में ऐसा बोलते हैं ना, हाचवी ने, क्योंकि वो कब मल्टीप्लाई हो जाएगा, कब बढ़ जाएगा, अपने को पता ही नहीं चलेगा। यही तो कृपा है, यही तो आशीर्वाद है। किस रूप में नारायण मिल जाए अपने को क्या पता। तो इसके लिए प्रणाम करते चलो, नमस्ते करते चलो, जय श्री भाव भावेश्वर करते चलो, बाकी सब हो जाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी के चरणों में पुनः हृदय से हार्दिक प्रणाम। હવે આપણે પૂજ્ય ગુરુજીના આશીર્વાદ લઈએ। આજે સોમવતી અમાસ છે।
પૂજ્ય ગુરુદેવને ભગવાને આપણને અમાસના દિવસે મોકલી આપેલા, જાણે કે લગન સરા અમાસના દિવસે નહીં હોય. એટલે આપણા માટે જ ગુરુદેવને મોકલેલા છે એવું સમજો. મહાદેવ 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 મહાદેવ. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. 73 वर्ष पूरे हो गए. छोटी यात्रा तो नहीं है. जहां से जन्म हुआ वहां से लेकर आज तक इस यात्रा का अनुभव बड़ा विलक्षण रहा, बड़ा विलक्षण. छोटे थे, माता पिता की आज्ञा में थे. समय आने पर गुरु सदन हुआ, गुरुदेव का आश्रय मिला. वहां भी गुरु आज्ञा में रहते हुए विद्याध्ययन हुआ. गुरु कृपा से ही वाराणसी जैसे क्षेत्र में विद्याध्ययन का अवसर मिला. पढ़ लिख करके उनके पास आए तो संन्यास दीक्षा मिली. 1974 में वसंत पंचमी के दिन. उन्होंने ही अनुग्रह करके अपने ही स्थान पर हनुमान जयंती 6 अप्रैल 1974 नासिक कैलाश मठ का गादीपति आवाहन अखाड़े का आचार्य बना दिया. सत्संग प्रवचन करते रहे. 74 में जब आचार्य महामंडलेश्वर बने थे तो सबसे पहले हम आदिवासी क्षेत्र में 1 महीने की धर्म जागरण यात्रा करने के लिए आए थे. 1974 में प्रारंभ वहीं से प्रवचनों का अपने क्षेत्र में गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ शुरू. उन्हीं की आज्ञा थी, जाओ पहले इस क्षेत्र में परिभ्रमण करके आओ और प्रवचन करके आओ. वो चाहते तो मुझे कह सकते थे जाओ कलकत्ता चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, प्रवचन करके आओ. लेकिन महामंडलेश्वर बनते ही यहाँ आया जब नासिक तो कह दिया पहले इस क्षेत्र में जाओ
मैं इस क्षेत्र से अपरिचित नहीं था। सभी का स्नेह मुझे उस समय भी प्राप्त था, भक्तों का। मुझे अच्छा भी लगा गुरुदेव की आज्ञा से। और मैं 1 महीना, उस समय तो कोई साधन नहीं थे, इतने रास्ते भी नहीं थे, बैलगाड़ी में जाया करते थे एक दूसरे गांव में। और सत्संग वही प्रधान है, पहले भी था, आज भी है, वही करते रहे। आत्मीयता इस क्षेत्र से 1965 से ही थी, लेकिन 74 के बाद, 74 के बाद तो और ज्यादा बढ़ती गई। एकाएक एक दिन गुरुदेव आए नासिक और मुझे आज्ञा दी, श्रीमद् भागवती कथा तैयार करो। मैंने गुरुदेव से कहा, आपने मुझे महामंडलेश्वर बना दिया है, अब मैं किसके पास पढ़ने के लिए जाऊंगा, तो कैसे तैयार करूंगा। गुरुदेव ने कहा, टीका गुरु नाम गुरु, श्रीमद् भागवत की जितनी भी टीकाएं हैं उन्हें इकट्ठी करो। तुमको न्याय पढ़ाया है, व्याकरण पढ़ाया है, वेदांत पढ़ाया है, स्वयं मेहनत करो और तैयार करो, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और ऐसा कह के उनका हाथ मेरे माथे के ऊपर ऐसे रख दिया। बस उस क्षण से जीवन में एक परिवर्तन आ गया और श्रीमद् भागवत के साथ जुड़े, स्वाध्याय किया, अनुष्ठान किए। अब जो प्रवचन होते थे मेरे, वो गीता उपनिषद के ऊपर नहीं, केवल श्रीमद् भागवत के ऊपर होने लगे थे। और मेरा मन भी रम गया था बहुत अधिक श्रीमद् भागवत में। परमात्मा श्री कृष्ण के साथ में बहुत प्यार भी हो गया। कोई कोई मुझे कहते भी कि आप तो सन्यासी हैं, शंकर आपके इष्ट हैं और आप राधा कृष्ण के लिए रोया करते हैं। मैंने कहा, जीवन में व्यक्ति के अनेक संबंध होते हैं। जैसे मेरे भी भगवान शिव और पार्वती के साथ माता और पिता का संबंध है, और भगवान श्याम सुंदर को मैं अपना पति मानता हूं, स्वामी मानता हूं। तुम्हें क्या आपत्ति हो सकती है। और मैं निसंकोच होकर के राधे राधे रटा करता था और इसका कीर्तन भी करवाया करता था। उस तदाकार वृत्ति ने भगवान श्याम सुंदर के साथ में जो मेरी भावात्मक प्रीति, जुड़ाव, लगाव जो बढ़ता गया, और उसके बाद जो कथाएं शुरू हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में बहुत बड़े बड़े लोगों का आना शुरू हो गया। सामान्य स्तर से विशिष्ट व्यक्तियों का जुड़ाव शुरू हुआ, आते गए। लेकिन मेरे मन में किसी तरह से भी कोई आकांक्षा का भाव जागृत नहीं हुआ कि ये लोग आ रहे हैं, इनका मैं कुछ लाभ उठाऊं, या ये धनाढ्य लोग हैं, आश्रम को कुछ दे जाएंगे, अच्छा होगा। ऐसी कोई प्रवृत्ति, बल्कि वैराग्य की दशा उस श्रीमद् भागवती कथा काल में और दृढ़ हो गई, बलवान हो गई। कभी कभी तो मन में आ जाता था कि मैं महामंडलेश्वरी छोड़ के चले जाऊं, एक कैलाश मठ छोड़ के चले जाऊं। और एक दिन ऐसा मैंने कर भी दिया। मैं वलसाड़ में थे गुरुदेव,
मिलने आ गया था। वो महापुरुष थे, सिद्ध थे, मेरा हाव भाव देख करके पहचान गए थे। क्या कहने आए हो? मैं आज्ञा लेने आया हूं। किस बात की? अब मैं महामंडलेश्वर नहीं रहना चाहता, कैलाश मठ में नहीं रहना चाहता। तो कहाँ जाओगे? हमने कहा वृंदावन जाएंगे। आज्ञा दीजिए। उन्हें अच्छा नहीं लगा था, मुझे मालूम है, और उन्होंने बोल के भी बता दिया मुझे कि मुझे नहीं अच्छी लगी तुम्हारी ये बात, और बहुत कुछ मुझे सुनाया भी, दुख भी प्रकट किया, और बाद में मुझसे कहने लगे अगर मेरी आज्ञा के अनुसार यहाँ रहते हुए तुम साधना करोगे तो तुम जिसे चाहते हो यहाँ बैठे बैठे तुमको मिल जाएगा। और उस आज्ञा का पालन मैंने किया, 100% आज्ञा का पालन किया, नहीं गया उनको छोड़ के। और जब उनका शरीर शांत हुआ तब उन्होंने मुझसे कहा सदा मैं तुम्हारे साथ हूं, इन आदिवासियों का हाथ मत छोड़ना। शुरुआत उन्होंने आदिवासियों से करवाई मेरे प्रवचन की। देखिए उस महापुरुष के मन में कितना लगाव रहा होगा कि जब विद्या अध्ययन करके आया, गादीपति बना दिया, तो पहली आज्ञा दी इस क्षेत्र में प्रवचन करने की, और जाओ उधर। अच्छा, मुझे आनंद इसलिए आता था कि तुम सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। प्रवचन करके रात्रि को आते थे, गर्मी भी बहुत होती थी, लाइट का ठिकाना नहीं होता था, तो आम के झाड़ के नीचे सो जाते थे। ऐसे घाटला डाला। गोविंद में की एक घटना सुनाता हूँ। आम के झाड़ के नीचे सो रहे थे, और नागर भाई और थे ना उन लोगों के, ये बैठा हुआ है एक तो मेरे सामने कालिदास, उसके आगे पीछे का एक क्षेत्र था वो पूरा, जो भगत जी थे अपने मंदिर में रहा करते थे, उनके पास ही एक आम के वृक्ष के नीचे खाटला डाला और हम सो गए। हम तो नींद में थे, ऊपर से एक बड़ा राजापुरी, क्योंकि वो समय आम का था ना, अप्रैल मई जो महीना है वो अपने आम का महीना होता है। तो एक मोटा सा आम सीधा मेरे कपाल पे आके पड़ाया। अभी तो पहना दिया वो भाई ने, कोई मेरे एक माथे में डाल दिया, तो वो सीधा आकर के पड़ा में एकदम उठा। ये क्या हो गया? एक महामंडलेश्वर का आचार्य है, और उसकी पाठ पूजा किससे हो रही थी? इस लगाव ने आज तक उस संबंध को इतना प्रगाढ़ कर दिया है कि तुम भी जानते हो, और इस बात को मैं भी जानता हूं। न तुम मुझे अपने आप से अलग कर सकते हो, न मैं तुम्हें अपने आप से अलग कर सकता हूं। और जब शरीर शांत होने लगा उस महापुरुष का हरिद्वार कुंभ में, तब भी उन्होंने यही कहा, इन आदिवासी भक्तों का हाथ मत छोड़ना। मुझे सब कुछ याद है, एक एक सेंटेंस उनका उस समय बोला हुआ। और मैंने कहा भी था, मैं नासिक कैलाश मठ की गादी छोड़ दूंगा, आवाहन अखाड़े का आचार्य पद छोड़ दूंगा, आपका बनाया हुआ भीड़ भंजन महादेव आश्रम बलसाड़ का छोड़ दूंगा, लेकिन इन गरीब आदिवासियों का हाथ में नहीं छोड़ूंगा। और उसका परिणाम है आज प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने। जब यहाँ आकर के बैठे थे, क्या था? ये रमतू भाई सामने बैठे हैं, एक झाड़ नहीं था इस जमीन में, खाली पत्थर पत्थर और खड्डे ही खड्डे थे।
लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा था तो गुरुदेव का आदेश आया, विद्या तुम्हारा स्थान आ गया है। और उसके बाद में रमतू भाई और भीकू भाई 2 लोग मेरे पास आए थे। उनसे हमने कहा कि मुझे स्थान चाहिए, और इन लोगों ने ही व्यवस्था करके दी। तो आज देख लीजिए, गुरु आज्ञा पालन करने का फल आपके सामने है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ हमेशा, गुरु आज्ञा में रहिए, निस दिन रहिए, गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए। जो गुरु चाहे सो ही करिए, जो गुरु चाहे सो ही करिए, और परिणाम आपको जरूर मिलेगा। और मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। अनुभूति के क्षण आते हैं, आप उसे पकड़ पाते हैं या नहीं, ये आपकी बात है। तो इस यात्रा के दरमियान गरीब आदिवासी से लेकर के और राजमाता सिंधिया के राजप्रासाद तक संबंध हुआ। मैं जीतू को लेके गया था राजमाता सिंधिया के राजमहल में मेरी सेवा में। पीछे बैठा है छोकरा है, क्यों रे गया था? कभी मन में ये लगा ही नहीं कि ये गरीब है और ये अमीर है। कभी भेद दृष्टि मन में आई ही नहीं किसी के भी लिए। तुम अगर भेद कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं। अगर तुम छुड़वा करके जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। वो भी 3 बार समझाऊंगा। गुरुजी ने कहा था कि कोई जाता है तो उसको समझाओ कम से कम 3 बार, और फिर नहीं समझता तो उसका प्रारब्ध मान के और फिर छोड़ दो, भूल जाओ। अभी एक ताजा दाखला देता हूं, मेरा क्या संबंध था। सामने भाई बैठा है, केवल एक दिन आए यहां और अतुल में मुझे आमंत्रण दिया। महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, पाटोत्सव, आपको आना है। मुझे प्रेरणा हुई और मैंने कहा कि मैं कल तो आऊंगा ही, कोई बात नहीं, आप बुला रहे हैं तो, लेकिन मैं एक दिन पहले आता हूं। शायद महादेव जानते थे कि वो प्रोग्राम पोस्टपोन होने वाला है, तो आज ही चले जा। इसलिए मैं पहले दिन ही आ गया, और उसी दिन मैंने स्वामी जी महाराज को फोन किया था कि मैं आपके पास साथ बैठ के भोजन करूंगा। जिस दिन आपके पास आया था वो इनके पास होकर के आया था। मैं वहां गया, जो ही मैंने उस स्थान को देखा, मैंने कहा अरे इस स्थान पर तो मैं आया हुआ हूं। और कब आया हुआ था? 1967-68 की बात मैंने बोली। કેટલા વર્ષો પહેલા ગણી લો, 50 વર્ષથી વધારે થઈ ગયા છે, વધારે થઈ ગયા। મારા ગુરુદેવ ત્યાં જતા હતા। વાક્ષીપા જ્યારે જાય તો અતુલમાં ત્યાં મંદિરમાં જાય, હું એમની સેવામાં રહેતો હતો, એટલે હું ત્યારે આવ્યો હતો। ત્યાર પછી મહાદેવે તમારા દ્વારા મને બોલાવ્યા પાછા। और फिर नई प्रोग्राम होते जाते हैं 50 प्रोग्रामों में, कौन किसको याद रखता है? कहाँ कोई जाता है? न वो मुझे भूल पाया, न मैं उसे भूल पाया। मेरे को मैसेज करता ही रहता है, मैं भी जवाब देता ही रहता हूँ। गुरुदेव ने कुछ सोच समझ करके ही मुझे यहाँ जोड़ा था कि इस क्षेत्र में सनातन धर्म की संस्कृति का प्रवाह निर्बाध गति से चलता रहे। उसके लिए विद्यानंद तुमको मैं योग्य व्यक्ति बना करके बैठा रहा हूं, और तुम इस प्रवाह को प्रवाहित रखना। मेरा शरीर ठीक हो न हो, मैं जैसी भी स्थिति में रहता हूं, कोई भी कार्यक्रम होता हो, बोले मैं उसमें साथ होता हूं या नहीं होता हूं। महादेव के अभिषेक करने का संकल्प होता है,
किसी किसी दिन तो इतना बुखार भी होता है और तबीयत नहीं साथ देती है, तब भी मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ। हालांकि मैं उसको सुनाता भी बहुत हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभिषेक तो करता ही हूँ और खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मेरा प्यार है। वैसे जब भी तुम कहीं बुलाते हो मुझे, एक आदिवासी केवल मुझे कह दे कि मेरे यहाँ आना है। एक दिन वो वेलजी भाई आया, गांडा बैठा है क्या? हाँ हाँ, इधर बैठा है ने, इधर आग लाओ तो जरा मोड़ बता तारो અહીંયા આ ગાંડો ભાઈ મને કહે છે કે તમારે આવવાનું છે કયા ગામમાં? અંબેટી. અંબેટી, હા અંબેટીમાં આવવાનું છે. એક ભગત છે તમારા હાથે ઘરનું મુહૂર્ત કરાવવા માંગે છે. और मैं जा रहा था उस समय के पटेल के घर, तो हमने चलो रास्ते में है और बोल रहा आग्रह से, तो चले जाता हूँ। अब स्वामी जी में वहाँ गया, कुछ भी नहीं। एक तो ये भाई रास्ता भूल गया, मेरे को रखड़ाता रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कोई बीजा नाच गिरे ले गया, मैंने कहा इसका मुहूर्त करना है। પછી મેં કીધું વેલજી તું ગાંડો થઈ ગયો છે, ક્યાં લઈ આવ્યો છે? પછી પેલા ભાઈને ફોન કર્યો, અમે સड़क पर ઊભા છે, તું આવી जा लेवा। उनका पहले ही बुला लेना चाहिए था, तुमको नहीं याद था तो। अब वहाँ गए धूप में, न तो कोई छापरा माथे पर, न कोई पंडाल, न कोई कुछ नहीं, ले जाके धूप में बैठा दिया। बोला यहाँ आपको मुहूर्त करना है। मैंने कहा भाई करवा ले, अब तू मेरे को जो भी करवाना है। तो ला के दे दिया मेरे को, क्या वो कुदाली पाहुड़ा। और वहाँ से करके मैं निकला। मैंने कहा वेलजी भाई થોડુંક તો વિચાર કર્યા કરો, હવે મારી ઉંમર થઈ ગઈ છે। पहला तो जवान था तो ठीक है, कोई बात नहीं थी। अब घड़पड़ में क्या रखड़ाई करो તમે મને? तो भी इनके प्रेम में कोई कमी नहीं है। देखो खड़े हैं ना, मैं इतना सुना रहा हूँ लेकिन हंस रहा है ना वो। ये स्वामी जी 50-60 साल का संबंध है और प्यार है। और सब जानते हैं कि गुरुजी बोलते हैं तो गुस्से से नहीं बोलते हैं, डांटते भी हैं तो प्यार से डांटते हैं। अरे वही जानी मैं कह तुमसे ये रहा था, इस यात्रा में एक झोपड़े से लेके महल तक की यात्रा परमात्मा ने करवाई, लेकिन कभी मन में ये भेद नहीं आया कि ये गरीब है और ये अमीर है, ये पैसे वाला है और ये गरीब है। ऐसा भाव कभी भी नहीं आया। बल्कि जब तुम 10 रुपए का नोट चढ़ाते हो, आजकल तो तुम भी पैसे वाले हो गए हो, कोई 100 चढ़ाता है, कोई 50 चढ़ाता है। पहले तो 10 रुपया, 5 रुपया ऐसा ही रखते थे, है ना। और मैं कभी कभी सुनाया भी करता था मजाक से, यार चप्पल का भाव बढ़ गया, 20 रुपया हो गया, 20 तो करो मेरा भी। ऐसे विनोद किया करता था भक्तों से। और भक्तों के मन में कभी कोई बुरा भाव आता ही नहीं था। आज उनके पास 2 पैसा आया है तो चढ़ाते भी हैं, देते भी हैं। आज ये बैठने की व्यासपीठ भी कितनी बढ़िया गिफ्ट किया है मेरे जन्मदिन पर। हर जन्मदिन पर ये लोग कुछ न कुछ अच्छा मेरे लिए लेकर के आते हैं और करते हैं, और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा कुछ भी दिया हुआ मुझे बेटा वो हमेशा अच्छा लगा और अच्छा लगेगा। मैं कहीं भी चले जाऊं, कहीं भी रहूं, जा करके तुम्हारे संबंध को भूलता नहीं हूं। ग्वालियर में 23 मई मनाई गई थी और उसमें आ गए थे भगा भाई और कांति भाई। मैंने वहां भी सबके बीच में उनका नाम लिया और मुझे अच्छा लगा। वो बात हो नहीं बने ये कांति भाई पहाड़ी विजिलेंस ऑफिसर रहे हैं, रिटायर हुए हैं। ये भगा भाई है। ये बने जन आए हुआ था, मजा पड़ी। अच्छा ठीक है।
तो कई मुसाफिर आते हैं और मिलते हैं यात्रा में, ट्रेन के अंदर उतर जाते हो, कहीं कोई व्यामोह कोई अटैचमेंट नहीं होता है। मेरी भी इस 73 साल की उम्र की यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव, अनेक सारे पड़ाव आए। भगवत कृपा से उन सभी को मैं आनंद से पार करता हुआ आज के दिन तक यहाँ पहुंचा हूं। मेरा जीवन स्वयं का तुम सबके लिए प्रेरणास्पद है। देखा होगा तुमने जिस समय में आया था बरूमाल में, इन घास फूस की झोपड़ियों में भी ठहाके लगाते थे कि नहीं, और आनंद से रह रहे थे। कोई शिकन नहीं थी कि नासिक जैसा कैलाश मठ आलिशान बना करके शिखर पर पहुंचा के छोड़ के आया था। बलसाड़ जैसा आश्रम, वहां से आने में जरा भी संकोच नहीं हुआ था यहाँ तक, और इन झोपड़ियों में भी खूब आनंद लिया, खूब आनंद लिया। लेकिन मुझे विश्वास था, मुझे दिखता था सब, यहाँ ये होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है। जब मेरा आर्किटेक्ट किरीट भट्ट आते थे यहाँ पर, मैं कहता था यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ कॉलेज बनेगा, यहाँ हमारा आवास बनेगा, यहाँ छात्रावास बनेगा, यहाँ यज्ञशाला बनाएंगे। तो मेरा ऐसा मुंह देखता था कि बाबा बेटा झोपड़ियों में है, हाँ पास में है कुछ नहीं, और ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो उनके साथ में उसकी असिस्टेंट रहती थी देवयानी मिस्त्री, वो मेरी शिष्या थी। उसने कहा सर आप नहीं जानते हैं महात्मा को, आप देखिएगा यहाँ क्या क्या होता है, जो कुछ ये बोल रहे हैं आप वैसा ही डिजाइन बना करके दीजिए, यहाँ वैसा ही सब कुछ बनेगा। और लड़की उनको समझाती। मैं जानती हूँ संत को, आज से नहीं, माता पिता इनके शिष्य रहे, और आज भगवत कृपा से तुम्हारे सामने खड़ा है। इसमें मेरा कोई महात्म्य नहीं है, ये सब गुरु कृपा ही केवल। हम क्या है, बस इतना विश्वास रखो, जो हमने गुरुदेव के ऊपर विश्वास रखे अपने आप को समर्पित किया, वही विश्वास आपके भी हृदय में दृढ़ रूप से हो, आपको भी सफलता मिलेगी, कोई संदेह नहीं है। 3 देवों की कृपा मेरे ऊपर हमेशा है, महादेव, भूदेव और गुरुदेव। ये तीनों देव मेरे ऊपर बड़े संतुष्ट हैं, बड़ी कृपा है सबकी, और उसी का परिणाम है इन 73 वर्षों में 5-5 लक्ष चंडियाँ कोई खाने का खेल नहीं है। स्वामी जी महाराज जी बैठे हैं सामने, अभी तो इस लक्ष चंडी में आप थे ही साथ में। मुझे कहें कि किन महामंडलेश्वरों ने 5-5 लक्ष चंडियाँ किया है, कोई भी नहीं किया। एकादशाति रुद्रयाग, तुम साक्षी हो, 1000 कुंडी अपने यहीं किए थे, पाड़वी साहब की, रमेश भाई पाड़वी की जगह लिए थे। 1000 कुंडी यज्ञ किया था, जिसका उद्घाटन करने के लिए गवर्नर आए थे और पूर्णावती में नरेंद्र मोदी आए थे। तो ये सारे कार्यक्रम हुए हैं ना, यहाँ सब किए हैं, और बड़े बड़े किए हैं। किसकी कृपा से? गुरुदेव, महादेव और भूदेव, इनकी कृपा रही, और उनकी कृपा के कारण मैं 4 लोगों के लिए यहाँ आके बैठ गया। और वो 4 लोग कौन है? गाय, गरीब, साधु और ब्राह्मण। मैं जी रहा हूँ गायों के लिए, गरीबों के लिए, साधुओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए। और निस्वार्थ भाव से, मैं किसी से कुछ चाहता नहीं हूं, अपने आप सब कुछ हो रहा है। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। इन 73 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि है बेटा मेरी, मैं किसी के सामने हाथ पसारने नहीं गया कि तुम मुझे कुछ दो, ऐसा मांगने के लिए मैं किसी के दरवाजे पे नहीं गया। और ये भगवान ने मेरी लाज रखी।
और ठाठ से रखता है। ईर्ष्या करते होंगे लोग मुझसे कि बाबा होकर के क्या ठाठ से मजे से रहता है। हाँ मैं रहता हूं। कैसे रहते हैं? देखो घंटा बजा बाहर, है ना, महादेव की कृपा से। ये छोकरियां तुम 2 हाथ वाले पति से शादी विवाह कर लेती है, लड़कियां 2 हाथ वाले से शादी करती है, उसको अपना पति मान लेती है। क्या वो पति उसको भूखा सोने देता है? मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या तुम लोग अपनी पत्नी को भूखा सुलाते हो? नए नए वस्त्र और आभूषण नहीं दिलाते हो? ठाठ से रखना चाहते हो? पूरी कोशिश होती है कि वो अच्छी तरह से रहे। हर पुरुष 2 हाथ वाला ही है और उस 2 हाथ वाली पत्नी को सुखी और समृद्ध देखना चाहता है और अच्छा बना के रखता है। तो फिर कल्पना करो, मेरा तो 1000 हाथ वाला है। वो मुझे कितनी ठाट बाट से रखेगा। वो भी 1000 हाथ वाला है और मैं भी 1000 हाथ वाला हूं। तुम सबके हाथ मेरे हाथ है, इसलिए वो मुझे ठाट बाट से रखता है, आनंद से रखता है। तुम भी उसके हो जाओ, तुम भी गुरु कृपा के पात्र बनो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जो लोग आए और निकल गए उनका अफसोस मत करो। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। एक दिन भोज, दोपहर का टाइम था, अपनी पत्नी को मिलने चले गए राजा भोज। उस समय उनकी पत्नी अपनी बहनपनियों के साथ, सखियों के साथ बैठ के कुछ गप्पा मार रही थी, बैठी थी, बात कर रही थी। और जाकर के भोज खड़े हो गए। उनकी पत्नी लीलावती, उसने कहा आओ मूर्ख। अपने पति को क्या कहा? और वो पति कौन था? राजा भोज। राजा भोज की पत्नी लीलावती राजा भोज से कहती है आओ मूर्ख। भोज बड़े बुद्धिशाली थे। उन्होंने सोचा मन में कि कुछ तो हुआ है, नहीं तो मेरी पत्नी इस तरह से मुझे बोलती नहीं। निकल के आ गए वापस वहां से। शाम को जब सभा शुरू हुई, 1400 पंडित थे उस सभा में और नवरत्न थे उनके साथ में। कालिदास, भारवी, भैरवी, ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वो वहां पर थे। अब जाके बैठ गए। पंडित लोग आने लगे सभा में। जो भी आए और राजा भोज को प्रणाम करे। भोज कहे आओ मूर्ख। जो भी आए उसको क्या बोले? आओ मूर्ख। वो सब जा जाके बैठ जाए और फिर एक दूसरे का मुंह देखें कि आज लगता है खिसक गया है, भोज का स्क्रू ढीला हुआ है। हर एक किसी को बोल रहा है आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। ए भाई इसको उठा ले, आओ मूर्ख। ऐसा करते करते 8 रत्न भी आ गए, बड़े बड़े विद्वान, दंडी, भारवी जैसे। उनसे भी कहा आओ मूर्ख। सब बैठ गए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अंत में आते थे कालिदास, सबके आने के बाद में। जब कालिदास आ गए, गए भोज के पास में। भोज ने उनको भी कहा आओ मूर्ख। सुनते ही उन्होंने कहा, एक क्षण नहीं लगाया, क्यों करके तुम मुझे मूर्ख बोलना चाह रहे हो? खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। तुम मुझे मूर्ख कह कैसे रहे हो?
खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए कभी चलता नहीं हूं, खाते हुए। और तुम लोग सब आजकल चौपाटी पे क्या करते हो, ईमानदारी से बोलो, चरते हो कि नहीं चरते हो? और चरने का काम किसका है, बोलो ना? पशु का है, मूर्खों का है। बैठ के खाना चाहिए शांति से। खादन न गच्छामि, खाते हुए मैं कभी चलता नहीं हूं। हसन न जल पे, ही करके मैं बात नहीं करता हूं। या तो बात ही करो या हंसी लो, ये मूर्खता के लक्षण है। और राजन गतम न सोचा कृतम न मन्ने, ये बात मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? जो चले गए तुम्हारे जीवन से, छूट गए, उनका अफसोस मत करो। समय ने छुड़ाया है, समय शायद वापस खड़ा भी कर दे। गतम न सोचामी, गई हुई बात को मैं कभी सोचता नहीं हूं, और सोच सोच करके शोक ग्रसित नहीं होता हूं, दुखी नहीं होता हूं। और कहते हैं कभी अपने किए हुए का मैं अभिमान नहीं करता हूं। ये काम मैंने किया है, अगर जो हूं नहीं करत तो अथातज नहीं। एवी जातनो घमंड, एवी जातनो अभिमान, हूँ क्यारे करतो नहीं। ये भी मूर्खता का लक्षण है। और हे राजन, जहां लोग दो चार बात कर रहे होते हैं, उनमें जाके मैं खड़ा नहीं होता हूं। तो तत्काल लग गया भोज को कि मेरी पत्नी अपनी सखियों से बात कर रही थी, और मैं दाल भात में मूसल चंद होके खड़ा हो गया। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन, किम कारणम भोज भवामी मूर्ख। इनमें से एक भी काम मैंने नहीं किया, तो मुझे मूर्ख कैसे कह सकते हो? तो भोज कहते हैं कहीं वांधो नहीं, बैसो बैसो है आराम थी થઈ ગયો, મારો જવાબ મને મળી ગયો। जवाब सब आपके लिए है। ये भोज तो एक निमित्त बने, आप अपने जीवन में भी सोच के देखिए इन सब चीजों को। क्या आप खाते हुए चलते हैं? क्या हंसते हुए बात करते हैं? या गुजरी हुई बात को बार बार रिपीट करके और रोना पीटना करते हैं? अगर करते हैं तो फिर आप भी मूर्ख है। छोड़ दीजिए प्रारब्ध मान करके, भगवान काल की बात मान करके छोड़ दीजिए। जब समय आएगा, जो गए हैं वो वापस भी आ जाएंगे, और नहीं आना होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान हमारा कभी बुरा कर ही नहीं सकते हैं, कभी बुरा कर ही नहीं सकते। वो जिस व्यक्ति को आपके जीवन में जोड़ के रखना चाहेंगे, वो जोड़ेंगे कि हाँ इसके लिए ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं है तो अलग भी कर देंगे आप। फिर उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि भगवत इच्छा नहीं थी वो। इसलिए मित्रों, जीवन के इस यात्रा काल के दौरान अनेक साथी आए और अनेक साथी गए। जिन्होंने बहुत कुछ सेवा भी की वो भी गए, और जिन्होंने केवल बातें बनाई वो भी गए। लेकिन तुम ठोस माल रहे, ठोस। न तुमने आना किया, न तुमने जाना किया। तुमने स्थिर रहना सीखा, स्थिर रहना। और सचमुच तुम गुरु भक्त हो, गुरुमुखी हो। मैं तुमको खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। खूब आगे बढ़ो अध्यात्म के मार्ग पर। तुम्हारा जीवन सुख सुविधाओं से भरा हो। पेट नहीं भरा हो ना बेटा तो राम राम भी नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं ना, भूखे भजन हो नहीं गोपाला, ये लो अपनी कंठी और माला। तो तुम्हें भगवान इतना समृद्ध तो बना ही दे कि जिससे तुम भी खा सको और आने वाले को खिला भी सको।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसी स्थिति तुम्हारी बने, तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि के साथ आध्यात्मिक बने। इन्हीं शब्दों के साथ ये 73 वर्षों की यात्रा के दौरान जो कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ में शेयर कर सकता था उतनी बातों को बताया हूँ। वैसे तो जीवन में बहुत कुछ अनुभूतियाँ हुई है, उनके लिए तो एक किताब तुम चाहो तो लिख दोगे तो भी चलेगा, और शायद हो सकता है मरने से पहले मैं लिख भी जाऊँ स्वामी विद्यानंद की आत्मकथा। बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ मिला है, अनुभव बहुत बड़ी थाती है वो मेरी। इसी यात्रा के दौरान स्वामी नित्यानंद जी मिल गए। मिलाने वाले अलग हो गए और मिलने वाला साथ बैठा हुआ है। जो लाने वाला है वो अलग चले गया और ये यहाँ बैठे हैं। वैसे कैलाशपुरी पहले बीच में थे और बीच में छूट गए थे, फिर आ गए। भगवान काल ने कृपा किया। मैं तो यही मानता हूँ, महादेव जो कुछ करते हैं भले के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लेकिन गर्मी के कारण से गुरु जी परेशान न हो, आने वाले परेशान न हो, ये सोच करके वहाँ के भक्तों ने कहा गुरुदेव व्यवस्था सब हमारी होगी लेकिन मनाएंगे हम सदगुरु धाम में ही, अपने हॉल में ही। तो मैंने स्वीकृति दी थी कि हाँ आप लोग यहीं मनाइए। तो मैं सभी शेरी माल के भक्तों को हमारा ये जन्मदिन मनाने के लिए, वैसे देखो ना महात्मा का कोई जन्मदिन वन्मदिन होता नहीं है। हम लोग जो है ना शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। जन्मदिन मनाना तो देहधारियों का काम होता है। मैंने ऐसे ही बोल दिया था किसी को, तो उसने कहा आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए तो आपका देह महत्वपूर्ण है और इसलिए हम तो मनाएंगे। अब कोई दादागिरी करे तो हम क्या कर सकता है? बनाओ तुम्हारी मर्जी। हम तो गोबर गणेश की तरह से आके बैठ गए। तो इन सभी भक्तों को आज की सारी व्यवस्थाओं के लिए भोजन से लेकर के और आयोजन तक, वो दीपक जो है वो श्रीमाल का है। मैं भूल गया था, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, याद नहीं रहता है। तो मेरे कान में गुरु मंत्र दे गया कि हमारा, मैंने कहा ठीक है। तो तुम सभी को मेरा खूब खूब धन्यवाद और आशीर्वाद है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव का निर्वाण महोत्सव अपने अलग अलग गांवों में मनाते हैं, वो सब भक्तों का ही उत्साह है। उनका निर्वाण महोत्सव और हमारा वर्तमान महोत्सव ऐसे ही मनता ही रहने वाला है। सुनो एक बहुत मजेदार बात, आवाज आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, ग्वालियर से ही वो चुनाव लड़ा करते थे और विजयी भी हुआ करते थे। एक ही बार वहां पराजित हुए तो फिर लखनऊ गए, लखनऊ से जीते। तो आए हुए थे वहां, उनका जन्मदिन आ गया था। जैसे अभी मैं ग्वालियर गया था तो आ गया, तो फिर छोड़ा नहीं उन लोगों ने मेरे को, वैसे लोगों ने छोड़ा नहीं उनको। हम आपका जन्मदिन मनाएंगे और आपको सिक्कों से तोलेंगे। तुमने भी सिक्कों से एक बार तोला था 57वें जन्मदिन पर, तो बोला सिक्कों से तोलेंगे, चांदी के सिक्कों से तोलेंगे। अटल जी बड़े मस्त आदमी थे और बड़े विनोदी भी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो करो कार्यकर्ताओं से। अब बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। जैसे ये तुला लटक रही है, वहां भी लटक रही थी,
तो उनसे कहा आइए अब आप बैठिए, तुला में बैठिए। उस समय एक कांड हुआ था, अंतुले कांड, सीमेंट का घोटाला, याद है क्या आप लोगों को, बम्बई वालों को? बम्बई में हुआ था अंतुले कांड। तो कहने लगे अटल जी चलो भाई बैठ ही लेता हूं, नहीं तो लोग मुझे भी अंतुले कहेंगे। अंतुले यानी बिना तुले, हाँ, इसलिए मैं तुली लेता हूँ। इसलिए अब मैं भी नीचे आता हूँ और थोड़ा तुली लेता हूँ। लोग लगा के रखा है तुमने, तो नहीं तो लोग कहेंगे गुरु जी अंतुले रह गए। हालांकि तुमने तो सिक्कों से भी तोला, चांदी से भी तोला, और आज अलग अलग वस्तुओं से भी। मैं आ रहा हूँ नीचे बैठने के लिए, शांति रखना। तुला देवतानां पूजनं जन्त्रीराज्यं जमनि ध्रुवासि धरित्री इहेत्वो वरजेत्वा रचयित्वा मोखायत्वा लोकन्ताम् इन्द्रम् विष्णोररागमसि विष्णोः तत्रेस्तु विष्णोः स्यूरसि विष्णुवर्तृगोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। કાઢીને મુકાવી દો, એમ જ મૂકી દીધા ને. જો મોકલી જાય પાસે બધાને. ચલા કાકા આગળ બેસી જાવ. બધાને કદાચ ખબર ન હોય, ગુરુજીના વજન જેટલો 3 વસ્તુ તોલવામાં આવશે. આ ધાન્યથી તોયલા, હવે ગુળથી એટલે કે ગોળ ગુજરાતી. એની સાથે સાથે વાર લાગે. બધો રહી થોડો. આજે તુલાની સામે છે ભક્તો, સાઈડ થઈ જાઓ એટલે બધાને દર્શન થાય. સામે થી હટી જાઓ. જોઈ લેવો ભાઈ.